switching to the today's topic with a while statement. Now it is the one of the simplest looping structure, like we can say that for loop also. But the for loop, as we discussed, that for loop is having condition, means initialization of a variable integer I, or simply we can declare it as a I equal to 0, I equal to 1. Then we have a condition checking, I is less than or equal to 0, I less than or equal to n, and n will be provided by the user. Then I plus plus, I minus minus, minus minus I plus plus I means pre-increment, post-increment, pre-increment, post-decrement. That means four options are there. Then the body of the for loop. So all these are a package. But when we are talking about the while statement, there is some difference with comparison with the for loop. This loop, that means while loop, is having a structure like while, then test condition, means a single condition was there which will be unable to check whether the body of the while loop will execute or not, right? So while is an entry control loop. It is also called as a entry control loop, right? While you have a registration of a vaccine, अगर आपके पास वैक्सीन का रजिस्टर्ड किया हुआ either we have one registration number, or either you have a screenshot of that particular registration, or we have a login, right? We have to show it at a vaccine center, and then you are permitted to enter for a vaccine dose first. ठीक है, कितने लोगों ने किया है वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन 18 प्लस? कोई है, किसी ने किया है? No one? Chetan, okay. Anyone? No sir, okay, okay. Those are 18 plus. I'm talking about that. So those can do, जो कर सकते हैं and 18 above है, definitely registered yourself. Okay. So the case is while you are registered, that means this statement, if it is true, that means there is some registration number. In that case you can enter into the vaccination center. Similarly, when we enter into the college, okay, we should have a required documents in order to get an admission into that particular college. Second thing is, when you admitted to the college, you should have, after admission you should have a valid ID card. College का valid ID card आपके पास होना चाहिए, so that they will allow you to enter. So some kind of examples are that when we just go to the any we can say that restricted area, or we observe that in many movies there is a passcode or passwords are there. Then some punch cards are also there. In many MNCs, multinational companies, there is a swapping cards or punch cards or thumb that will be there for registration or for attendance, might be, or for entry purpose. So in that case the program which is implemented, that is a while statement. These are the some of the real life examples of a while statement, and that's why it is called as an entry control loop. Who will enter into the premises, that will be monitored or that will be controlled by the while statement. If the person belongs to the premises with a valid ID card, with a valid credential, then you can enter, correct? So that can be the not exactly, but at a small level. If we have a one website, over there is a login and password, okay? So while you enter the wrong password, there should be some message shown to you, करेक्ट? आपको मैसेज आता है, आपने अगर रॉन्ग पासवर्ड एंटर किया है कहीं पे भी, जीमेल पे एंटर किया है या फिर फेसबुक पे या फिर कोई भी लॉगिन वेबसाइट है जहाँ पे आपने ऑलरेडी लॉगिन किया था, पासवर्ड सेट किया था, एंड इन दैट केस LMS है हमारा, वहाँ पे भी हम अगर रॉन्ग पासवर्ड अगर एंटर करते हैं तो इट विल चेक इट विल नेवर गिव यू एंट्री इनसाइड द पर्टिकुलर application, right? So it is the while loop. The test condition is violated, and if the condition is true, then the body of the loop is executed. ठीक है? So in that case what happened? If the test condition is
perfectly true, either or, there is no option. If it is perfectly true, in that case you can enter into the inner part of or body of that particular while loop, otherwise you will be out from that particular execution. After the execution of the body, the test condition is once again evaluated. If it is true, then body of the loop will be executed again and again. Okay, this process is a repetitive process, because every time what increases the value of counter. Counter means if we want to collect the data of a 10 students, and we have to find out that how many students will have score more than 65%. So in that case, we have to collect the data from first student, then counter plus plus, second student, then I plus plus, third student, then again I plus plus, fourth student. So likewise we have to reach to the 10th number, जो हमने कल प्रोग्राम में देखा था, which is a similar to that part. We have to check it, each and every person and their condition. Test expression is that what? Marks greater than or equal to 65. अगर marks greater than or equal to 65 है, in that case what happened, it will enter into the body of the loop, and body of the loop will say that counter, right? So if we do that particular part as a programming, in that case it's just like that, while condition is mark greater than or equal to 65, then body of the loop is count plus plus and I plus plus, right? So what happened with this, agar while condition will be start, it will check that the marks entered by the user. Okay, so who will enter that marks? That marks will be entered by, just a minute, okay, that marks will be entered by the user and it will be read by the scanf. After that what happened, it will check that if it is a 69 is greater than or equal to 65, so in that case count, which is initialized as a 0, इनिशियली हम काउंट को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा 0 to 1, एंड देन वैल्यू ऑफ आई, ठीक है, दैट विल बी इंक्रीमेंटेड. तो we can do that particular part of I, or we can do that marks plus plus or the user plus plus, that we can also do. So with the help of that while statement, we can achieve that one condition, that you can stop unwanted persons, we can allow the one who is G91. Okay, then you will see the one example over here. Sum equal to 0 n equal to 1 while n is less than or equal to 10. ठीक, I guess ये हमने देखा था, right? Anyone remember it? Sum plus Yes, n, yes, yes, n, sir. n into n. Okay, ये हमने पहले Yes, देखा sir. था. Yes, Then sir. we can check like this. Character, जैसे इंटीजर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो सर ते एक पेज वरती कर सर. हाँ, yes, हाँ. So shall I repeat once? Search. Yes, sir. Yes. Okay, so Yes, sir. in that case what happened, value of n, that 1 is less than or equal to 10, that was a testing of a टेस्ट एक्सप्रेशन. वो जो टेस्ट एक्सप्रेशन हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं वाइल के, that we have to check it, means condition will be checked. After that, if the condition is true, as it is true right now, sum equal to sum plus n into n, right? I guess that program is based on the square of the given number. जितने भी आपको नंबर्स चाहिए जो आपने दिए 1 to 10, आई गेस, बिकॉज वाइल की कंडीशन है, तो हमको वाइल की कंडीशन से पता चल जाता है कि लूप कितने बार एग्जीक्यूट होगा. अगर n की वैल्यू 0 रहती है तो 0 to 10 मीन्स 11 टाइम्स लूप विल बी एग्जीक्यूट. एम आई राइट? 0 अगर वैल्यू रहती है n की, so in that case your loop, while loop will execute exactly 11 times.
Is it correct? Yes, sir. Because 1 to 10 टोटल 10 नंबर, Yes, sir. Yes, sir. एंड 0 अगर हम लेते हैं तो उसका एक 1 प्लस हो जाएगा तो 11 टाइम्स. बट हियर वैल्यू ऑफ n इज 1 एंड 1 to 10 that is total 10. बट इफ वी यूज्ड n लेस देन 10, अगर कंडीशन में हमने इक्वल टू हटा दिया n लेस देन 10, तो लूप वाइल का लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा? सर हमने क्या हटा दिया है तो? लेस देन इक्वल टू, तो उसमें जो इक्वल टू साइन है वो अगर हमने हटा दी, वी जस्ट यूज ओनली वाइल n लेस देन 10. 10 times. 9 times. श्योर? 10 टाइम्स 10 होगा? times. 9 times. 9 times. 9 times times. होगा sir. 9 times. Why it is 9 times? Because when value सर of हमने n इज इक्वल टू 1 लिया है कि 0 लिया है? n equal to 1, 9 times. 9 9 times, times. right? So why it is so? Because the 10 less than 10, जब भी कंडीशन रहेगी तब एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? वाइल का फॉल्स हो जाएगा. बट 9 लेस देन 10 जब रहेगा, वैल्यू ऑफ n इज 9. 9 लेस देन 10 जब रहेगा 10, then in that case expression will be true. Just because of that we can say that अगर इक्वल टू साइन अगर नहीं रहती है तो n minus 1 times loop will be execute. Is it correct? n minus 1, n की वैल्यू अगर हम 10 कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो n minus 1 times loop will be execute. But when there is a equal to sign, in that case it is not working. ठीक है. So while loop की कंडीशन चेक होने के बाद sum equal to sum plus n into n. So value of sum is initially 0. 0 plus value of n is 1. 1 into 1. We will do on the paint so that it will good to understand. Now this value of sum is 0. 0 plus 1 into 1, correct? So initial value of sum is 1, correct? पहले अटेम्प्ट में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. नाउ द वैल्यू ऑफ n इज 1. 1 plus 1 2, ठीक है. सो द while लूप विल चेक फॉर द n लेस देन और इक्वल टू 10. ये जो लूप है यहाँ पे वैल्यू ऑफ n बिकम्स 2 इन सेकंड लूप, ठीक है. सो 2 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू. नाउ sum equals to value of means sum equal to sum plus n into n. So the value of sum is, current value of sum is 1, so we will put 1 here plus n into n. Value of n is 2. 4. 2. 2 into 2, that is 4. You're right. ठीक है. So the value of sum equals to 5. 5. ठीक है. Then again we have to do the n plus 1, n equal to n plus 1. Value of updated n is 2. 2 plus 1, that becomes 3. Now again it will check for the 3. 3 is less than or equal to 10. Yes, condition is true. In that case sum equal to, sum क्या थी अभी? current sum 5. is 5. 5. 5. Yes, 5 plus value of n is, updated value of n is 3. 3. 3. 3 into 3. 3 into 3. So that becomes 9 14. plus 5, that is 14. So now updated value of sum is 14. Now if it goes from this like this, so it will reach to the value that is 10. वो कहाँ तक जाएगा? 10 तक जाएगा, ठीक है. सो 10 इज लेस देन और इक्वल टू 10. यस, कंडीशन इज ट्रू. तो वहाँ पे वो 10 इंटू 10 प्लस जो भी सम होगी कैलकुलेट करते 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 इंक्रीमेंट होती गई, ठीक है. इंक्रीमेंट होती गई और ओवरराइट भी होती गई. मेक श्योर दैट कि इट इज ओवरराइट. इंक्रीमेंट भी हो रहा है, ओवरराइट भी हो रहा है.
So in that case we will get the specific output. Correct. So this body of a loop is executed 10 times for n equal to 1 2 up to so on 10, because we use the equal to sign. Okay. Now if we use is it understood, sir? Sarj? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Yes, sir. Okay. So same while can be used for a character. ठीक है, character not equal to y, right? So we will see that, we will say to the user enter the any character. ठीक है, जैसे आप जब पासवर्ड सेट करते हो तो योर फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी कैपिटल, ऐसा अगर हमको सेट करके रखना है कुछ ऐसा रूल्स, ठीक है, तो इन दैट केस व्हाट वी विल सेट वाइल कैरेक्टर नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू कैपिटल लेटर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मीन्स नॉट इक्वल टू कैपिटल लेटर, इसका मतलब क्या हो गया? इट इज इक्वल टू द स्मॉल लेटर. Sir, opposite क्या है? हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ, ओके ओके. सो वाइल कैरेक्टर नॉट इक्वल टू वाई, सो हम लिखेंगे वाइल कैरेक्टर नॉट इक्वल टू द कैपिटल लेटर. करेक्ट. नॉट इक्वल टू कैपिटल लेटर इट मीन्स व्हाट? इसको हम सर हाँ सर यहाँ पे जो y उन्होंने स्पेसिफाई किया है वो कोई भी कैरेक्टर रह सकता है क्या? यस यस मतलब वो कैपिटल लेटर है, ऐसा ऐसा किसने बोला? नहीं नहीं, इट इज स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर और एनी कैरेक्टर दैट वी कैन यूज, वो नहीं है. माय क्वेश्चन इज व्हेन देयर इज अ इंस्ट्रक्शन गिवन टू यू इन ऑर्डर टू सेट द पासवर्ड. पासवर्ड सेट करते टाइम पे आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि योर फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. करेक्ट. सो इन दैट केस इफ यू पुट वाइल दैट कंडीशन, टेस्ट एक्सप्रेशन जो रहेगा नॉट इक्वल टू कैपिटल लेटर, इसका मीनिंग क्या होगा? नॉट इक्वल टू कैपिटल लेटर मीन्स स्मॉल चलेगा क्या? यस सर. Yes, sir. एग्जैक्टली. Yes, sir. तो हम Yes. Yes, sir. उसको अगर उल्टा करते हैं, नॉट इक्वल टू स्मॉल लेटर, यानी कंपल्सरीली आपको कैपिटल लेटर देना पड़ेगा. करेक्ट. ये निगेशन का मैकेनिज्म है, यानी जब हम बोलते हैं Yes, sir. कि Yes, sir. निगेशन का एक आधा एग्जांपल याद आता है कि जो पॉजिटिव में हो सकता है. I'm not exactly remember any example, current example, but in case of a programming, if you say that negation of a means not equal to positive value, ठीक है, नंबर नॉट इक्वल टू पॉजिटिव, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ तो निगेटिव नंबर इज अलाउड, इट मीन्स. करेक्ट. ये समझ में आ रहा है Yes, sir. कि हम जो कंडीशन दे Yes, रहे हैं sir. उसमें अगर निगेशन लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो निगेशन किसी अपोजिट कंडीशन के लिए क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है. आई एम नॉट निगेटिव. Yes, sir. Yes, sir. मैं निगेटिव पर्सन नहीं हूँ, मैं निगेटिव सोचता नहीं. आई एम नॉट निगेटिव थॉट, आई डोंट हैव निगेटिव थॉट. इट मीन्स दैट आई हैव अ पॉजिटिव थॉट. करेक्ट. सो द निगेशन ऑफ निगेशन that becomes a positive. ठीक है. So that can be also used in case of a while in order to check that whether the given data of a person is valid or not. If it is not valid, stop that person at the particular point and make a one comment over there that you should enter a valid पासवर्ड विथ सच काइंड ऑफ कंडीशन. एक अल्फ़ाबेट कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल होना चाहिए, या भी जो भी एट द रेट वगैरह जो भी रहता है वो होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए. ठीक है. सो दैट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर पार्ट. हियर दे से दैट द फर्स्ट कैरेक्टर इज इनिशियलाइज टू द सिंगल कोट्स. वहाँ पे सिंगल कोट्स कोई भी एक कैरेक्टर आप एक्सेप्ट कर सकते हो, बट कंडीशन क्या दी है उन्होंने? अगर y आता है, ठीक है, नॉट इक्वल टू y बोल रहे हैं वो, ठीक है, नॉट इक्वल टू y इज व्हाट इट मीन्स, द वाइल स्टेटमेंट
then begins by testing whether the character is not equal to y, since the character was initialized to the blank. The test is true and the loop statement will be the character equal to get char. ठीक है, नॉट इक्वल टू वाई इट जस्ट मीन दैट अगर आप वाई देते हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? वाई अगर लेटर देते हैं हम तो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा वाई के लिए सर, वो नॉट इक्वल टू वाई गिवन है ना. द Sir, कैरेक्टर, सी दैट सिंस द कैरेक्टर वाज इनिशियलाइज टू ब्लैंक, ब्लैंक हमने इनिशियलाइज किया है पहली लाइन, कैरेक्टर इक्वल टू दिस वन इज कैरेक्टर इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है. is that if that blank is the test is true and the loop statement will execute character equal to get char is executed each time a letter is keyed and entered in the test carried out. The loop statement is executed until the letter y is pressed. करेक्ट, यानी आप पहली बार जब कैरेक्टर देते हो, ए अगर देता है दिया है या फिर बी अगर दिया है, सी अगर दिया है, इन दैट केस इट विल गेट कैर विल रीड दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर और गेट विल दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर. बट वंस यू एंटर द वाई तो वो क्या हो जाएगा, वाइल कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू होगी कि फॉल्स होगी? वाई अगर एंटर करते हैं तो फॉल्स. वाई अगर एंटर करते हैं तो फॉल्स हो जाएगी. बाकी जगहों पे ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी दिया तो क्या हो जाएगी, ट्रू होती जाएगी. करेक्ट. यस सर. इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो. yes sir. बिकॉज वी यूज द No sir. कॉन्साइज टेस्ट एक्सप्रेशन, एक टॉपिक है हमारे इसमें 4th यूनिट में कि कॉन्साइज टेस्ट एक्सप्रेशन, उसमें हम इसी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं कि कैरेक्टर नॉट इक्वल टू वाई मीन्स वाई नहीं होने को होना. इसका मतलब क्या है, बाकी जो भी Sir? 25 कैरेक्टर्स है, हाँ यस सर मतलब वाई के सिवाय कुछ कोई भी कैरेक्टर उसमें चलेगा. यस, और जब भी वाई आएगा तब वो रुक जाएगा. राइट, जैसे हम एडिशन ऑफ सर म्हणजे समजा आपल्याला password- बोला बोला. मग समजा कॅरेक्टर लहान दिले आपण समजा त्याच्यात तरी तर सगळे कॅरेक्टर द्यावे लागतील का मग ए टू झेड? नाही नाही नाही, कुठलाही हा वन बाय वन देऊ ना आपण, कारण गेट केअर काय करतो, गेट केअरचं थोडंसं आठवतं काय, गेट केअर विल रीड द ओनली 10 कॅरेक्टर राइट और 20 कॅरेक्टर. हाउ मेनी कॅरेक्टर्स दॅट रीड द गेट केअर? सिंगल कैरेक्टर. सिंगल कैरेक्टर. ओके, 10-20 तो कोई सवाल ही नहीं बनता. गेट केयर विल रीड ओनली अ सिंगल कैरेक्टर, सो विच इज एंटर्ड बाय द यूजर. यूजर जब एंटर करेगा ए, ठीक है, तो वो ए रीड करना कि नहीं करना दैट विल डिपेंड ऑन द वाइल. तो वाइल में क्या आएगा, ए आएगा, ए नॉट इक्वल टू वाई, कंडीशन इज ट्रू एंड देन इट विल एंटर दैट द कैरेक्टर इक्वल टू गेट केयर, तो वो ए रीड हो जाएगा. ठीक है, बी आप एंटर करोगे, सी एंटर करोगे, हर बार वो एंटर होगा, रीड होगा. बट वंस यू एंटर द वाई एट एनी वी कैन से दैट इंस्टेंस, ठीक है, इन दैट केस यू जस्ट हैव टू स्टॉप, मीन्स वाइल विल स्टॉप यू. वाइल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा एंड इट विल स्टॉप यू. जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं व्हेन वाई इज प्रेस द कंडीशन बिकम्स फॉल्स बिकॉज द कैरेक्टर वाई और कैरेक्टर इक्वल्स वाई and the loop will be terminate, thus transferring the control to the statement. जो भी होगा नीचे का उसमें वो ट्रांसफर कर देगा. ठीक है, सो इसका एक और एग्जांपल है कि हमको एडिशन ऑफ अ नंबर्स विच विल एंटर बाय द यूजर until user will not enter 0 by using while statement. ये एक प्रोग्राम है जो आपको करना है. ठीक है, क्या है उसमें, यूजर ने अगर एक वैल्यू दी 10, उसके बाद हमने उसको और बोला एंटर द वैल्यू, 12 दी, उसके बाद हमने उसको और बोला 15 दो, उसके बाद और बोला 16 दो, उसके बाद और बोला 26 दो. ठीक है,
या ऐसी रन टाइम वैल्यूज हम यूजर से लेंगे जो हम कैलकुलेटर में करते हैं ना, 10 प्लस 26 प्लस 38 प्लस 39 प्लस 4 प्लस 7 प्लस, ये जो कैलकुलेशन करते हैं हम, एडिशन ऑफ अ नंबर, ठीक है, या फिर मार्क्स ऑफ एनी स्टूडेंट्स, ठीक है, जब तक के वो मार्क्स पॉजिटिव नंबर रहेंगे, ठीक है, इट विल एक्सेप्ट इट. वंस इट विल एंटर अ जीरो, इट मीन्स दैट इट विल शो द सम ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स. ठीक है, उसने क्या करना चाहिए, जितने भी गिवन नंबर्स है उन सभी के सभी की सम आपको दे देना चाहिए. ये प्रोग्राम आप वाइल की हेल्प से कर सकते हो, वाइल स्टेटमेंट की हेल्प से कर सकते हो. ठीक है, सो मेक अ नोट ऑफ इट that we have to do the one program. The title of the program is sum of n numbers, and n will be entered by the user at a interval of a time. यानी वन बाय वन वो एंटर करता जाएगा और वो कब तक के आपको लेना है, until user will enter a zero. Take a sum of a numbers until the user will enter a zero. ठीक है, any confusion in while statement? Anything ask? Anyone? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. Then moving towards the do statement, right? So it is a primary portion of a while. Means do while we can say that simple do is not sufficient to perform the action. ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं जनरली, डू द वॉक while you are talking on a mobile. वो आया था ना, आइडिया का एक ऐड आया था अभिषेक बच्चन का, अगर किसी ने देखा होगा, पुरानी ऐड है वो, 5 6 7 8 साल पहले की, मे बी. व्हाट एन आइडिया सर जी, ये कभी सुना है? Yes, sir. कि उसमें वो बोलता है कि Yes, Yes, sir. sir. मोबाइल Yes, पे sir. अगर बात करनी है तो बैठ के ही बात करनी है, इट इज़ नॉट नेसेसरी. वॉक व्हेन यू टॉक और टॉक व्हेन यू वॉक, ऐसा कुछ तो भी एक स्लोगन दिया था उन्होंने. और आइडिया ने ये भी किया था कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग योर नेम एज अ नेम ऑन योर नेम प्लेट, हाउस नेम प्लेट, यू जस्ट हैव टू पुट योर मोबाइल नंबर. ठीक है, जैसे एक रहता है ना हमारे घर के सामने, हम हमारा जो भी घर के बड़े हैं, ठीक है, तो उनका नाम लिखते हैं नेम प्लेट के ऊपर. ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया था, गांव में नेम प्लेट के ऊपर घर के बाहर नंबर्स लिखे थे, और किसी को भी वो बुलाते थे तो वो ऐसे बुलाते थे, 808986858354, ऐसा जो भी नंबर्स रहता था उस हिसाब से. सो दैट वाज अ पर्टिकुलर एडवर्टाइज विथ स्टार कास्ट एज अ अभिषेक बच्चन. सो द कंसेप्ट वाज वॉक व्हेन यू टॉक, या फिर टॉक व्हेन यू वॉक. टॉक व्हेन यू वॉक इट इज़ गुड वन, बिकॉज आप टॉक जब भी बात करते हो तो हम एक ही जगह पे बैठे रहते, दैट्स वाई इट मे बी द प्रॉब्लम. बट जब आप बात कर रहे हो तो आप फ़ोन पे अगर बात कर रहे हो तो आप वॉक भी कर सकते हो. ठीक है, सो दैट इट इज़ अ वन डू वाइल स्टेटमेंट. डू द कॉलिंग और डू द चिट चैट. ठीक है, आप बात कर सकते हो और टॉकिंग वाइल यू आर वॉकिंग, और रिवर्स भी कर सकते हो आप. ठीक है, वाइल यू आर वॉकिंग, in that case you can talking. ठीक, so that is a one of the advantageous statement, because in that जब आप बात कर रहे हो तब तक के वो कंडीशन ट्रू रहेगी, वॉक कर रहे हो तब तक के कंडीशन ट्रू रहेगी. समझो एक ऐसा अगर हमने एप्लीकेशन बना दिया मोबाइल में, जैसे ऑलरेडी एक एप्लीकेशन मेड है व्हीकल में, इफ़ यू गेटिंग ड्राउजी, अगर हमको नींद आ रही है, यॉर्निंग आ रहा है, ठीक है, मैंने ऐसा मैंने गाड़ी चलाते चलाते झप्पी ले रहे हैं हम, ठीक है, नींद की वजह से. सो इन दैट केस देयर इज़ अ सेंसर इन योर कार. ठीक है, कुछ मॉडल्स ऐसे डिज़ाइन किए गए और टेस्टेड भी किए गए कि वो ऑटोमेटिकली अपना स्पीड कम कर देती है कार. ठीक है, आईओटी बेस रहता है, सेंसर्स बेस रहते हैं, जो आपका स्टीयरिंग रहता है उसमें सारे सेंसर्स लगे हुए रहते हैं, और वो आपको कंटिन्यूसली ट्रैक करता रहता है, मॉनिटर करते रहता है. ठीक है, आपका फेस.
So once you do the yawning or you are sleeping, in that case your vehicle will automatically reduce the speed, क्योंकि आपका एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ वो धीरे धीरे लेफ्ट हैंड साइड, जैसे अपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हम पार्क करते हैं, तो फॉरेन में राइट हैंड साइड में रहता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में वो धीरे धीरे इंक्लाइन होती जाती है, यानी धीरे धीरे सरकती जाती है और रोड के नीचे आ जाती है, बहुत ही धीरे धीरे, ठीक है। सो दैट एंड इट विल स्टॉप, जब तक कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे नहीं बन जाते कि आप फुल्ली फ्रेश हो और आप कंफर्टेबल हो ड्राइविंग करने के लिए, तब तक कि वो स्टार्ट भी नहीं होती, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, व्हाइल यू आर स्लीपी योर व्हीकल विल नॉट मूव ऑन, आपकी व्हीकल क्या होगी, मूव नहीं होगी, ठीक है। तो वही एग्जांपल अगर हम फोन में लगा दें कि हम किसी को कॉल अगर करना है तो कॉल तभी लगेगा जब आप वॉक करोगे, ठीक है। वो मोड आप ऑप्शनल रख सकते हो, इट इज़ नॉट कंपलसरी, क्योंकि बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है कि हमको किसी कॉम्पैक्ट सिचुएशन में है, हम वॉक नहीं कर सकते हैं और वहाँ से अगर कॉल करना है तो कॉल ही नहीं लगेगा, ठीक है। गलती से कहीं हम फंस गए, वहाँ से अगर कॉल करना है तो हमको वॉक करने के लिए भी वहाँ पे जगह अगर नहीं है, वॉक भी नहीं कर पाएंगे एंड टॉक तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एप्लीकेशन स्टॉप कर देगा। सो इट इज़ डिपेंड ऑन यू, जस्ट लाइक अलार्म हम लगाते हैं हमारे हिसाब से, वो एक एप्लीकेशन है, तो दैट काइंड ऑफ एप्लीकेशन वॉज देयर, यू जस्ट हैव टू सेट इट दैट व्हेनेवर वी विल टॉक, जैसे अगर हम किसी को कॉल करते हैं तो कॉल तभी लगेगा जब आप वॉक करते रहोगे, ठीक है। तो ये जो जब आप वॉक करते रहोगे, दैट पार्ट इज अ डू पार्ट, ठीक है। दैट पार्ट इज अ वाइल पार्ट एक्चुअली। डू पार्ट इज व्हाट, वी हैव टू मेक अ कॉल, आपको कॉल करना है, ठीक है, डू द कॉल वाइल यू आर वॉकिंग। अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करोगे, वॉकिंग की जो कंडीशन है वो अगर सेटिस्फाई नहीं करोगे, देन योर कॉल विल नॉट बी कनेक्टेड और कॉल विल नॉट बी इनिशिएटेड, दैट मीन्स डू पार्ट विल नॉट बी वॉक, ठीक है। सो विल सी विद द हेल्प ऑफ वन प्रोग्रामेटिक एग्जाम्पल that while loop constructs that we have one previous section make a test condition before the loop is executed, ठीक है। लूप एग्जीक्यूट होने के पहले while की कंडीशन चेक की जाती है, जैसे हमने देखा था कि अगर while की कंडीशन ट्रू है, इन दैट केस इट विल एग्जीक्यूट, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो अंदर भी नहीं आने देता, ठीक है। बहुत बार ऐसा हो जाता है, हमारे डोर जो ऑटो लॉक वाले डोर्स रहते हैं ना, जैसे उसमें, या फिर ये अपना कार के जो डोर्स रहते हैं ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं, ठीक है। तो हम बाहर नहीं आ सकते, बाहर से अंदर नहीं आ सकते अगर हमारे पास कीज वगैरह नहीं है तो। हाँ, यस, एनी एग्जांपल? 10 सेकंद नंतर ऑटोमॅटिक लॉक होत असते. यस यस, इट इज हैविंग अ ट्रिगर, मीन्स रिवर्स टाइम वाज देयर, तो डोर में भी समजा वैसा। आपण गाडी लॉक केली, हाँ हाँ, यस यस सर, गाडी लॉक नाही केली तर ऑटोमॅटिक समजा आपण अंदर नसलेलं की ऑटोमॅटिक लॉक होऊन जात असते गाडी 10 सेकंद नंतर. exactly auto lock system was there, or even if when you switch off your car, ऑटो अनलॉक सिस्टम वॉज ऑल्सो देयर, ठीक है। जैसे हमने कार का इग्निशन बंद कर दिया, फॉर एग्जाम्पल सिग्नल पे है हम, कार का इग्निशन हमने बंद कर दिया, तो जो भी हमने लॉक लगाए थे चारों डोर्स को वो अपने आप ओपन हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट वाज अनलॉक, ऑटो अनलॉक। बट डोर जो हमारा रहता है, घर का जो दरवाजा, उसमें अगर वो सिस्टम हम अगर लगा दें, ठीक है, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि डोर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है और हम घर के बाहर ही रह जाते हैं, ठीक है, तो वो डोर फिर अंदर भी नहीं आने देता, ठीक है। और अगर उस टाइम पे हमारे पास कीज वगैरह नहीं है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। सो द केस इज while loop will have a positive effect on some examples, whereas it has some sort of a negative impact on other hand also. So in order to decrease or in order to remove that kind of a part which is unwanted, we can attach the one do part with the while. How we can attach it? The body of the loop may not be executed at all the condition if it is or it is not satisfied at a very first attempt. जब भी फर्स्ट अटेम्प्ट हम करते हैं while में, इन दैट केस कंडीशन ट्रू होगी तो वो एंटर होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एंटर नहीं होगा,
whether the person is a owner of that house or whether he is a thief, he or she whatever. तो he is a thief, तो thief को तो नहीं आने देना चाहिए, बट वो ओनर को भी नहीं आने देता अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो, ठीक है. So that was a particular problem. On the some occasions it might be necessary to execute the body of the loop before the test is performed. यानी टेस्ट एक्सप्रेशन चेक करने के पहले कई कई जगहों पे ऐसा होता है कि बॉडी ऑफ लूप शुड बी एग्जीक्यूट फर्स्ट, ठीक है. सो इन ऑर्डर टू हैंडल द सच काइंड ऑफ सिचुएशंस we use the or we take the help of a do statements, and the do statement is what? Do then body of the loop. तो loop को क्या कर दिया आपने, do में डाल दिया, and उसके बाहर हमने while की टेस्ट कंडीशन ली है, and this is only the one statement do while where we put the semicolon after the while. if के बाद आपने semicolon देखा था, if statement में कंडीशन रहती थी या फिर if else में, तो if की जो कंडीशन रहती थी या फिर else का जो पार्ट रहता था वहां पे कभी आपने सेमीकोलन देखा था? यस और नो? नो सर. नो सर. No, sir. My question is, when you write if in bracket n is greater than or equal to max number ब्रैकेट कंप्लीट और उसके बाद में सेमीकोलन, ऐसा स्टेटमेंट हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि इफ Yes, sir. हाँ यस, इफ के इमीडिएटली अगर हम सेमीकोलन लगा देते हैं तो वो टर्मिनेट हो जाएगा. वो नीचे का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स है जिसके अंदर कुछ मटेरियल लिखा हुआ है, कुछ कोड लिखा हुआ है, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. एल्स का पार्ट का भी वैसे ही है, ठीक है. वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने चाहिए, इसलिए हम इफ या फिर एल्स या फिर नेस्टेड इफ एल्स या फिर एल्स इफ में कभी भी, और या फिर फॉर लूप में भी, फॉर लूप के अंदर सेमीकोलन है, i इक्वल टू 1 सेमीकोलन, i लेस देन और इक्वल टू n सेमीकोलन, i प्लस प्लस, यहाँ पे हम सेमीकोलन देते हैं. बट फॉर लूप के बाहर ब्रैकेट्स कंप्लीट होने के बाद इमीडिएटली हम सेमीकोलन नहीं देते हैं. अगर देते हैं तो क्या होता है वो आप खुद चेक करके देख सकते हो, वो क्या करेगा वहां पे टर्मिनेट कर देगा, ठीक है. बट हियर व्हाट हैपन, वी वांट दैट आफ्टर अ व्हाइल देयर इज अ टर्मिनेशन. व्हाइल केस जब चेक होती है टेस्ट कंडीशन, उसके बाद टर्मिनेशन होना चाहिए, ये हमको ज़रूरी है, तभी वो डू का पार्ट फिर से एग्जीक्यूट करेगा. अदरवाइज वहां पे अगर हमने सेमीकोलन नहीं दिया तो व्हाइल के बाद वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो पोर्शन होगा, ठीक है, उसमें एग्जीक्यूशन नहीं करेगा क्योंकि वो टर्मिनेट होगा ही नहीं, ठीक है. सो द केस इज अ स्लाइट डिफरेंस which makes a major impact in the programming. That is what do part will be on the top with a body of a loop, opening and closing brackets, then there is a while, inside there is a test condition, and semicolon is compulsory, ठीक है, only semicolon, no full stop, no colon. Then we will see the example that do print है, input a number and we use the get num नाम का हमने एक फंक्शन यूज किया है. उसके एक्चुअली डेफिनेशन उन्होंने बताई नहीं है, बट दैट डेफिनेशन शुड बी देयर, गेट नम, बिकॉज वो फंक्शन है. उसके पीछे हमने क्या लगाया है, फंक्शनल ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है. सो इट इज अ गेट नम नाम का एक फंक्शन है. सो दैट पार्ट विल बी एग्जीक्यूट फर्स्ट टाइम, देन द नंबर वैल्यू, ये जो नंबर है उसमें कोई तो भी वैल्यू स्टोर होगी, and that stored value will be compared with the while condition and number is greater than 0. अगर वो 0 है, 0 is greater than 0, condition false हो जाएगी. in that case it will terminate the particular execution. but इसमें एक बार do का loop execute होगा, while में ऐसा नहीं होता है. while में condition false हुई तो वो अंदर loop के अंदर आपको एंट्री नहीं देगा. बट do while में कंडीशन अगर फॉल्स होती है, नंबर यहाँ पे 0 ग्रेटर देन 0 अगर आ गया या फिर -1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो भी आपको डू का पार्ट एक बार एग्जीक्यूट करने देता है, ठीक है, वंस, एंड देन कंडीशन विल चेक. कंडीशन फॉल्स, देन नो एग्जीक्यूशन, इट विल स्टॉप. कंडीशन ट्रू, इट विल रिज्यूम अगेन बैक टू, जैसे एरो दिया है, अगेन बैक टू द लूप, और लूप फिर से डू पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर से नंबर को अपडेट करेगा.
यहाँ पे क्या होगा, वो अपडेट होगी उसकी वैल्यू नंबर वेरिएबल की, एंड देन इट विल अगेन चेक whether the number is greater than 0 or not, and there is a semicolon. ठीक है, that was a continuous checking. It is also called as a sentinel variable number. जैसे हमने दो टाइप्स देखे थे कल, कौन से थे दो? Anyone remember it? Two types. Of a statement. Go to statement. Yes, there is a go to statement, continue, break, all this, but there are the two types, out of which one is a sentinel statement, control loop, sentinel control loop, और एक था, कौन सा था? Anyone? Sum plus equals number. No, I will show you this sentinel loop, counter control loop and sentinel control loop. वो एक्चुअली हमने सबसे आखिरी में टॉपिक लिया था, इसके वजह से वो मे बी बहुत से लोग लेफ्ट भी हो गए थे और स्किप भी हो गया था. ओके, सो काउंटर कंट्रोल लूप मीन्स जहाँ पे हमको पता रहता है कि काउंटर कितना चलेगा. ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ ये वाइल कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो क्या लूप कितने बार चलेगा वाइल में, डू वाइल में? कैन एनीवन टेल how many times loop will be execute in do while? Sir, infinite time. Is it correct? No, infinite times not. See, loop will execute on depending on the condition. टेस्ट एक्सप्रेशन और कंडीशन क्या दी है, नंबर ग्रेटर देन 0. तो यूजर जो वैल्यू देगा एज अ नंबर, ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा वेदर लूप विल एग्जीक्यूट और नॉट. यूजर ने पहले ही अटेम्प्ट में अगर 0 वैल्यू दे दी तो 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. बट जबकि ये डू वाइल है तो लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा, सिर्फ एक बार, और वो हमेशा एग्जीक्यूट होता है. डू वाइल का लूप हमेशा एक बार एग्जीक्यूट होता है, ये बिल्कुल पक्का ध्यान में रखना. और वाइल का लूप कंडीशन फॉल्स होते से ही वो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर कंडीशन फॉल्स है तो. डू वाइल का लूप कंडीशन ट्रू है तो मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट हो सकता है, कंडीशन फॉल्स है तो एक बार तो भी एग्जीक्यूट होगा ही होगा. सर. हाँ, यस सर, फॉल्स कंडीशन में उसका आउटपुट क्या निकलेगा एग्जीक्यूट होने के बाद? यानी ये जो करंट प्रोग्राम है ये क्या? यस सर, हाँ, 0 ग्रेटर देन 0 हाँ, लिखने के बाद प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा, इनपुट अ नंबर, ठीक है, नंबर एंटर कर दिया फॉर एग्जांपल 0, ठीक है, और उसके बाद यस सर जो डैश डैश दिया है ना नीचे हमने, ये नीचे है इसके डैश वाइल के नीचे, तो वहां पे अगर हमने स्टेटमेंट लिखा है कि द वैल्यू ऑफ अ नंबर, प्रिंटफ वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू %d, ये अगर हमने स्टेटमेंट लिखा तो वहां पे नंबर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी विच इज अ 0. ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है भी. हाँ, क्योंकि ओके सर. वो लूप के बाहर लिख रहे हैं ना हम. कंडीशन फॉल्स क्यों है? क्योंकि ये जो डू वाइल पार्ट है हम क्या कर रहे हैं, इट इज वन ऑफ द रिपीटेटिव स्टेटमेंट. करेक्ट, वैसे सेंटिनल टाइप का है, सेंटिनल कंट्रोल स्टेटमेंट है, बट इट इज अ रिपीटेटिव स्टेटमेंट. तो रिपीटेशन कितने बार करना ये हमको फॉर लूप में पता होता है, बिकॉज कंडीशन इज नोन. हियर कंडीशन इज अननोन बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर, और नंबर कौन देता है, यूजर देता है. यूजर ने अगर नंबर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 1 दे दिया, इनपुट अ नंबर 1 दे दिया, 1 रीड हो गया विद द हेल्प ऑफ गेट नम, देन इट विल चेक 1 इज ग्रेटर देन 0, देन द लूप विल बी कंटिन्यू. बट अगर यूजर ने 0 दे दिया, ठीक है, तो ये जो डू वाइल लूप है इसका तो काम खत्म हो गया ना, इसका काम खत्म हो गया, उसका स्कोप भी खत्म हो गया. ठीक है, क्योंकि सेमीकोलन दिया है आपने, और यहाँ पे जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये जो लूप वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है, तो यहाँ पे सेमीकोलन की वजह से वो टर्मिनेट हो जाएगा. और टर्मिनेट होने के बाद जो नेक्स्ट लाइन है, सॉरी, नेक्स्ट लाइन जो भी होगी, जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे हम,
वो तो एग्जीक्यूट होगा ही ना, उसका और डू वाइल का कोई रिलेशन नहीं है। जैसे अब यहाँ पे अगर नीचे हम देखते हैं, नाउ सी दिस, वी आर हैविंग द वाइल कंडीशन, ये एक वाइल कंडीशन है हमारे सामने, ठीक है, एंड दिस विल बी द डू पार्ट, ठीक है। अगर ये वाइल कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस केस में नीचे वाला प्रिंटफ स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होगा ही ना, उसका और वाइल का कोई डिपेंडेंसी नहीं है। डिपेंडेंसी है वैसे, क्योंकि अगर ये ट्रू होता गया, वाइल स्टेटमेंट ट्रू होता गया, ठीक है, इन दैट केस सम एंड वैल्यू ऑफ आई विल बी अपग्रेडेड but will not print. Once this while statement becomes false, then cursor moves to the printf statement. Correct? जब भी do part execute होता रहेगा continuously, while को चेक करते करते, ठीक है, in that case printf will not be execute. But once while statement becomes false, then printf statement will execute. It is just like that your for loop, ठीक है। बट फॉर लूप में क्या होता है, आपको पता होता है कितने बार लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, और फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट आप यूज करते हो वो उतने बार आपको एग्जीक्यूट करके दे देता है डेटा। बट यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, जितने बार आप लूप को एग्जीक्यूट करोगे ओनली सम एंड वैल्यू ऑफ आई विल बी चेंज एंड इट विल बी प्रिंट लेटर एट द एंड, सबसे आखिरी में उसको प्रिंट किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप एक बेसिक एग्जांपल ले सकते हो, 10 बच्चों का डेटा आपको लेना है डू वाइल में, ठीक है, हर बार हर बच्चा अपने मार्क्स एंटर करेगा, ठीक है। तो उस मार्क्स को क्या करना है, हमको काउंट करना है, सिर्फ काउंटर प्लस प्लस कि उसके मार्क्स 65% के ऊपर है क्या, ठीक है। तो वो भी एग्जाम्पल आप डू वाइल से लगा सकते हो, डू वाइल से सॉल्व कर सकते हो, and then we will find out that how many students that they score more than 65 marks. ये काउंटर के थ्रू आप डू वाइल के थ्रू भी निकाल सकते हो, ठीक है। सो मेक श्योर दैट डू वाइल लूप विल एग्जीक्यूट एट अ वंस, एक बार तो भी वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, वेदर द कंडीशन इज फॉल्स, और ट्रू रहती है तो वो कंटिन्यूसली रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। Now is it understood, or shall I take another example? Understood, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. So then we will Yes, sir. Okay. Understood, sir. Okay. So then we will move to the one question from a notes, right? Handwritten notes that loops or repetitive statements or iterative statements. ठीक है, repetitive statements हम उनको बोलते हैं जहाँ पे एक पोर्शन हम बार बार रिपीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ काउंटर प्लस प्लस, मीन्स आई प्लस प्लस। इटरेटिव स्टेटमेंट्स हम उनको बोलते हैं जहाँ पे डू वाइल का पार्ट आता है, यानी डू द पर्टिकुलर एक्शन, कब तक मैं वो एक्शन करता रहूं, जो भी एक्शन मुझे करनी है, ठीक है, मैं आई एम टीचिंग, ठीक है, डू में लिखूंगा मैं कि HN वाटा ने टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग कब तक करूंगा मैं टीचिंग, 10:30 तक, मोस्ट प्रॉब्ली 10:32, 2-3 मिनट थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। सो वंस देयर विल बी द 10:32 वाइल टाइम इक्वल टू 10:32 इक्वल टू 10:32, ठीक है, जैसे ही हो जाएगा मेरा टीचिंग क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका नेक्स्ट लेक्चर है, करेक्ट, 11:45 को आपका नेक्स्ट लेक्चर है, उसके लिए मुझे 10:30 को स्टॉप होना है। सो दैट वाज अ पार्ट ऑफ अ इटरेटिव स्टेटमेंट, इटरेशन हो रहे हैं उसमें, ठीक है, पूरा का पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, बट कब होगा, जब कंडीशन फॉल्स और ट्रू रहेगी कंटिन्यूसली, जब फॉल्स हो जाएगी तब स्टॉप हो जाएगा। रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स में हमको ये पता होता है कि भाई कितनी बार रिपीट होगा, ठीक है, सो दैट इट विल से फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल। So to repeat any statement multiple times, then we have to use a iterative statements, and these are the interactive statements and that are available in a C language, ठीक है। तो repetitive और iterative इन दोनों में हम क्या देखते हैं कि repetition तो होने ही वाला है, ठीक है, but we should know that कितने बार repetition होगा,
वो हमको फॉर और वाइल लूप में पता चल जाता है। बट डू वाइल में चीज़ ऐसी होती है कि एक बार तो रिपीटेशन होगा ही, यानी एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही, बट उसके बाद कितने बार होगा दैट विल डिपेंड अपॉन द यूज़र। यूज़र वैल्यू जैसे देगा उस हिसाब से होगा। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल डाला है सीपी डिस्कशन ग्रुप पे, फाइंड आउट वेदर द नंबर गिवन बाय द यूज़र इज पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, उसको हम डू वाइल में अगर करना चाहते हैं तो हम क्या बोलेंगे, यूज़र विल एंटर द नंबर till it will enter the negative number. Once it will enter the negative number, stop the execution, stop taking the number, और जितने भी नंबर्स एंटर किए उसने उन सारे के सारे नंबर्स की सम कर दो, बस इतना ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। ठीक है, तो ये भी एक प्रोग्राम हो सकता है डू वाइल के लिए। ठीक है, देन ये फॉर लूप का हमने ऑलरेडी 2-3 बार एक्सरसाइज कर लिया, फिर से एक बार देख लेंगे। फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन प्रोग्रामर नोज हाउ मेनी टाइम्स लूप हैज टू, ये हैज टू TWO वाला नहीं है, हैज TO2 है। ठीक है, ये डिक्टेशन में बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम होता है, हैज टू बी एग्जीक्यूट। ठीक है, सिंटैक्स है उसका इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, देन इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड बॉडी ऑफ लूप। तो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या रहती है, इनिशियलाइजेशन, सेकंड केस इज कंडीशन चेकिंग, थर्ड फेज इज बॉडी ऑफ लूप, and fourth one is the increment and decrement. So make sure that increment and decrement is the fourth one, right? There is one example में क्या बोला उन्होंने, 1 + 2 + 3 + 4 +, ये ऑलरेडी हुआ है हमारा, इसका आंसर क्या आता है, एनीवन? 55 55 एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एक फॉर लूप लिख दिया और उसमें हमने उसको स्टेटमेंट को भी एज इट इज एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि एंटर द नंबर, कौन से नंबर, 1 to 10। तो सारे के सारे नंबर्स का क्या कर देंगे हम, एडिशन परफॉर्म कर देंगे। एक्चुअली एग्जांपल हमने देखा हुआ है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट में दिया हुआ है। ठीक है, हैश इंक्लूड नहीं है, वॉइड मेन नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत शॉर्टकट में नहीं है। ठीक है, देन वाइल लूप व्हाट, when a user has to repeat a statement multiple times, user can use the while loop. While loop is also known as a entry checking loop, ये हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो उसका एग्जांपल है initialization, then value, while and then condition, and then there is a decrement and increment। ठीक है, तो यहाँ पे हम initialization क्या कर रहे हैं, I = 1, so 1 is less than or equal to 10, body of the loop will be executed till 11 जब भी रहेगा तब फॉल्स हो जाएगी, बट 10 रहेगा तो ट्रू रहेगी, बिकॉज 10 = 10 ये पॉसिबल है। ठीक है, दैट वाज अ पर्टिकुलर वाइल पार्ट। देन डू वाइल पार्ट, दिस लूप इज सिमिलर टू दैट ऑफ द वाइल लूप, द ओनली डिफरेंस इज दैट द कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड एट द एंड ऑफ द बॉडी ऑफ लूप। बाकी के कंपेयर में जैसे हम बोलते कि वाइल को एंट्री लूप बोलते हैं हम। ठीक है, सो सिमिलरली हम डू वाइल को क्या बोलते हैं, एग्जिट कंडीशन चेकिंग लूप, एग्जिट कंडीशन, बाहर निकलने की कंडीशन। वाइल 3 आवर्स आर कंप्लीटेड, हमारा पेपर कितने आवर्स का रहता है, 3 आवर्स का, कोई भी इंजीनियरिंग का पेपर क्या रहता है जनरली 3 आवर्स का, 9 to 12, सवेरे 9 बजे से 12 बजे तक का थेरी वाला पेपर, ऑनलाइन वाला नहीं। सो वाइल टाइम इज इक्वल टू 12, every students have to submit their answer sheet। so ये पार्ट कब आएगा, डू वाइल में आएगा। डू द आंसर, डू में आएगा राइट योर आंसर इन आंसर शीट, कब तक के, वाइल टाइम इज इक्वल टू 12 नून, जैसे 12 नून हो जाता है डू पार्ट एग्जीक्यूट होना बंद कर देगा। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल आप कर सकते हो। नोट, उसमें नोट है, डू वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस इवन इफ कंडीशन इज फॉल्स, वही मैंने जो बताया था आपको। ठीक है, देन फ्यू एग्जांपल्स आर देयर। हाँ, दिस पार्ट दैट आई वांट टू डिस्कस इन 1 minute ओनली, दैट इज व्हाट अ डिफरेंस बिटवीन अ डू एंड डू वाइल। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस इज दैट द कंडीशनल एक्सप्रेशन इज एग्जीक्यूटेड एट द टॉप ऑफ द लूप। वाइल हम जब भी लिखते हैं सबसे पहले ऊपर वाइल लिखते हैं, उसके बाद n इज लेस देन और इक्वल टू मैक्स वैल्यू और
आई इज लेस देन और इक्वल टू एन, जो भी कंडीशन लिखते हैं तो हम पहले ऊपर लिखते हैं. डू वाइल में कहाँ लिखते हैं हम वो? एट द बॉटम ऑफ द लूप, सबसे नीचे लिखते हैं हम उसको. ठीक है. सेकंड इज इट इज प्रेजेंट, sorry, it is pre-test, it is pre-test loop because the condition is evaluated before executing the body of loop. बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होने के पहले वो टेस्ट करता है टेस्ट एक्सप्रेशन को. that is was a particular pre-test condition checking. In case of a do while, it will use a post test loop. ठीक है, क्योंकि वो कब करता है? जब लूप एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद उसकी टेस्ट करता है, टेस्ट एक्सप्रेशन की. दैट इज व्हाट? अ पोस्ट टेस्ट. सो द while is a pre test and do while is the post test. Then if in case of a while, if while is execute the body of the loop, if the condition is true, जब भी वो true रहता है then body of the loop will be execute. We can say it when the statement or when the condition true, the body of the while loop will be executed. When the condition is true, body of the while loop will be executed. In case of a do while, it execute body of the loop at least one, even the condition is false. So that was a three major difference in between the do while. And the next is what? Their syntactical difference. Correct. जैसे while में हम condition पहले लिखते हैं, do while में हम condition आखिरी लिखते हैं और do का part पहले आ जाता है. So that was a particular difference in between the do and while. ठीक है. Is it understood? While do while difference. Yes, sir. Yes, sir. इसमें कोई Yes, sir. confusion? Any confusion in that particular part? No, sir. Okay. So for today we will stop here.